The properties which depend upon the number of solute particles with respect to total number of particles in a solution is a colligative property, and here we are having a one question that is from the relative lowering of vapor pressure from the unit 1 solution class 12th chemistry. The question says a solution of lactose containing 8.45 gram of lactose मीन्स यहाँ पे जो हमारा सॉल्यूट है वो लैक्टोज है और उसका गिवन मास प्रोवाइडेड है दैट इज 8.5 ग्राम इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। जो सॉल्वेंट है वो वाटर है और वाटर का जो गिवन मास है दैट इज 100 हैज अ वेपर प्रेशर मीन सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है दैट इज 4.559 solution ka, and at 0 degree Celsius temperature is also given. If the vapor pressure of a pure water means when it is single alone, it is only a solvent, no solute is there, तब उसका जो vapor pressure है that is a 4.579. Calculate the molecular weight of a lactose. We have to be find out that what is the molecular mass of lactose. Now for such question let's write what is given to us. Given क्या क्या है that is mass, or we can write the given mass of solute. वो क्या है यहाँ पे लैक्टोज है एंड उसका जो मास गिवन है दैट इज दी 8.45 gram and the given mass of solvent क्या है यहाँ पे that is the water and it is 100 gram. This what given to us and we are having कि जो प्रेशर है या वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर गिवन है हमें दैट इज दी 4.559 mmHg and we are also provided with the vapor pressure of the pure water and vapor pressure of the pure solvent वो कौन है यहाँ पे दैट इज दी वाटर एंड वो क्या है दैट इज 4.579 mmHg. नाउ व्हाट वी हैव टू बी फाइंड आउट, हमें क्या फाइंड आउट करना, वी हैव टू फाइंड आउट दी M2. ये आपको फाइंड आउट करना है एंड व्हाट इट इज, दिस इज दी मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट इज दैट, यहां पे सोल्यूट क्या है लैक्टोज है, ये आपको फाइंड आउट करना है. मीन्स हियर वी आर यूजिंग द colligative property relative lowering of vapor pressure and how we are relating the lowering of or relative lowering of vapor pressure with the molecular mass of the solute. Let's see that हम इसे किस तरह से लिखेंगे. So we are having the relation that pure pressure of the solvent minus the vapor pressure of the solution divided by pure pressure of the solvent, which is equal to that given mass of the, किसका यहाँ पे given mass है that is solute and the divided by molecular mass of the solute and यहाँ पे molecular mass of the solvent and given mass of the solvent. This what we are going to relate और ये relative lowering of vapor pressure है. यहाँ पे this is the pure pressure of the solvent जो कि यहाँ water है, this is the pressure of the solution जो कि lactose in water है and again pure pressure of the water, given mass of the solute जो कि यहाँ पे lactose है, molecular mass of the lactose जो हमें find out करना है that is a molecular mass of water, वो अभी हम फाइंड आउट कर लेंगे, हमें उसका फॉर्मूला पता है, एंड गिवन मास ऑफ द
what we are having the solvent, that is water here. तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं जो हमने given mass of the lactose है, मीन्स ये आपका W2 है, और गिवन मास ऑफ द सॉल्वेंट ये आपका W1 है, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन ये आपका P है, एंड प्योर प्रेशर दिस इज द P0. ये सब हमें मैंने जो लिखे थे वो ये है जो हमने अभी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने हैं, एंड वी हैव टू बी जस्ट फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द वाटर. नाउ फॉर मॉलिक्यूलर मास ऑफ द वाटर M1 कैसे फाइंड आउट करेंगे? We know that water is having a H2 as a molecular formula, and let me make the same bracket, and hydrogen का atomic mass जो है वो 1 होता है, and oxygen का जो है वो 16 होता है, right? यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम है तो 2 मल्टीप्लाई विद 1, दूसरा एलिमेंट स्टार्ट हो गया, प्लस ऑक्सीजन एक ही है और 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज 2 + 16 एंड इट इज 18 mu एटॉमिक मास यूनिट. तो मॉलिक्यूलर मास जो वाटर का है वो हमें यहाँ पे 18 mu आ गया है, मींस ये आपका M1 है. मैंने यहाँ M1 की वैल्यू, वहाँ सभी की वैल्यू को हाईलाइट किया है. M2 आपने फाइंड आउट करना है. लेट सब्स्टिट्यूट और पुट ऑल द वैल्यूज हियर. तो जब हम सभी वैल्यूज को ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज इन अबव रिलेशन, अगर आप सभी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हो, व्हाट यू आर गेटिंग, वी आर हैविंग अ प्योर प्रेशर दैट इज द 4.579 minus 4559 divided by 4.579 equal to W2, that is 8.45, and M1 अभी हमने फाइंड आउट किया है 18 डिवाइडेड बाय M2 मुझे फाइंड आउट करना है, एंड मल्टीप्लाई विद W1 दैट इज 100. Now because हमें M2 find out करना है, what we can do, we are doing the cross multiplication. Cross multiplication अगर हम करते हैं then what we are getting here, it implies that is the, हम सबसे पहले इसको माइनस ही कर लेते हैं, यहाँ पे पॉइंट है, that is 9 में से 9 चला गया तो 0, 7 में से 5 गया तो 2, 5 में से 5 गया तो 0, एंड 4 में से पॉइंट आ जाएगा और अगेन 0 डिवाइडेड बाय 4.579. अब एग्जैक्टली 3 जो हमारे डिजिट्स हैं वो आफ्टर द डेसिमल है, सेम एज जो डिनोमिनेटर उसमें भी है. तो यहाँ पे जो भी हमारा आएगा 100 वो कैंसल्ड आउट हो जाएगा. तो नाउ व्हाट यहाँ पे हमें क्या मिल गया, दैट इज दी, और इसे हम आगे ले जाएंगे 8.45 into 18 डिवाइडेड बाय M2 एंड 100. नाउ अगर हम M2 को यहाँ ले जाएं, दिस विल ऑटोमेटिकली गोज डाउन हियर. तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हमें क्या आ जाएगा, दैट इज M2 into 100 into 20, एंड ये जो फर्दर है ये हो जाएगा 8.45 into 18 into 4579. ये इधर चला गया और ये इधर आ गई. नाउ विच इम्प्लाइज, अब हमने M2 फाइंड आउट करना है, दैट इज M2 इक्वल टू, और बेटर वी शुड गो, यहां से हम यहां चले जाते हैं, ये कंफ्यूजन ना हो. देन M2 इक्वल टू 8.45 into 18 into 4579. ये एज इट इज मैंने लिख दिया और ये डाउन ऐसे चले जाएंगी. दिस इज व्हाट 100 into 20. नाउ यहां से हम डेसिमल हटा देंगे और 10 का टेबल हम स्टार्ट करेंगे. तो 2 10 एंड 2 9,
उसके बाद हम 5 का टेबल पढ़ते हैं। 5 2 जा, 5 1 जा, 5 6 जा एंड 4 9। अभी 2 रह गया मेरे पास और इधर कुछ भी ऐसा ऑड नंबर नहीं है जो 2 से कटेगा, तो लेट डू दी इवन हम मल्टीप्लिकेशन या हम जो बड़ा नंबर है उसे 2 से कट कर लेते हैं। दैट इज 2 2 एंड 8 एंड 9 यहाँ पे और 0.5, ये हमारा नंबर यहाँ से 2 के साथ कट गया है। अब हम 169 को इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो व्हाट वी आर हैविंग हेयर 2289.5 को हम मल्टीप्लाई, या हम पॉइंट पहले लिखते ही नहीं है, बाद में लिख लेंगे। हम एक 10 जो है वो डाउन और ले लेते हैं और नाउ हम इसे 9 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले, या 169 से कर लेते हैं, एक ही बात है, क्योंकि अब जो डिनोमिनेटर है उसमें सिर्फ हमारे पास हम 100 ही या मीन्स 00 ही है और हमें उनसे डेसिमल में ही यूज करना है, कुछ भी और नंबर नहीं जो कट आउट होगा। तो हम 169 से मल्टीप्लाई करते हैं, 9 5 जा 45, 4 कैरी 81 एंड 4 दैट इज 85, 8 कैरी यहाँ पे एंड 72 एंड 8 0 आ जाएगा, 8 कैरी हो गए यहाँ पे अगेन और यहाँ पे 18 दैट इज 26, 2 कैरी और यहाँ पे आ जाएगा 20 प्लस 6 का हम टेबल पढ़ेंगे तो 6 5 जा 30, 3 कैरी 54 एंड 3 57 एंड 5 कैरी 48 एंड 5 53, 5 कैरी एंड 12 एंड 5 17, 1 कैरी एंड 13 प्लस 5 9 8 2 2 that is equal to 5 5 12 1 कैरी एंड ये हो जाएगा 19 1 कैरी और ये हो जाएगा हमारा 16 1 कैरी और ये हमारा हो जाएगा 8 और यहाँ पे आ जाएगा 3। नाउ दिस नंबर इज गेटिंग मल्टीप्लाई विद 9 जो बच गया था, 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, सो व्हाट वी आर गेटिंग हियर 9 5 जा 45, 4 कैरी अगेन 49, 4 कैरी 22, 2 कैरी 83, 8 कैरी and this is 54 and 8 that is equal to 62. Now 2 carry and 72 and 2 74, 7 carry and 27 and 7 that is equal to 3 7 72 74 7 आ गया, that is 34 something. Okay, so what we are having now, हमारे पास जो नंबर आ गया है that is 3 4 4 2 3 2 9 5 और डिनोमिनेटर में 1 2 3 4 5 5 हमारे जो जीरोस है उन्हें ऊपर लेके जाना है, तो 1 2 3 4 5 we are having that is a 344.2 और that is इसका मॉलिक्यूलर मास आया है, तो हम इसको MU में लिख देंगे, दिस व्हाट वी आर हैविंग।